Everyone, please have some patience. We'll start our session soon. Good evening, everyone. Thank you for joining today's session. I am Gourab, your host for today's session. With due respect to all the guests and dignitaries, I would like to start our webinar for today. Zetademy is a foundation that aims to provide affordable online courses for standard 11 and 12. However, with collaboration with Sonarpur Mandalpara Youth Organization, Zetademy has decided to start a joint venture named the UG Math Cell, which provides communities over WhatsApp and Telegram where students from different universities and institutes can share their problems related mathematics and and our community members will try to solve their problems and support them and guide them
through their mathematics journey as best as we can. Today, we have decided to organize a webinar which focuses over some basic problems faced by a student of mathematics at undergraduate level. I would like to show the schedule for our webinar to everyone. We have decided to conduct this webinar. We have decided to conduct our webinar using a 3-day session. In our first day, that is today, 31st March, our topic is common problems during the transition from plus 2 level math to UG and how to overcome them. Our guest speaker for today is Dr. Gourab Tripathi from Department of Mathematics, St. Xavier's College, Kolkata. Tomorrow, on 1st April, we will have two talks, one by Dr. Lakshmi Kantade, the HOD, Department of Mathematics, NIT Durgapur. He would give his precious views on how to deal with the problems faced by students in analysis. And the next talk by Professor Aninda De from Department of Mathematics, St. Xavier's College, Kolkata. He would be sharing his views over basic odds faced by novice mathematics learners. And on our very last day, on 2nd April, Dr. Seema Sarkar Mandal from NIT Durgapur and Dr. Partha Karmakar, who is the Deputy Secretary of West Bengal Board of Primary Education and also the formerly Joint Director of Public Instruction of Higher Educational Department, West Bengal. The topic for 2nd April session is career options for mathematics students after undergraduation. So this was the schedule for our upcoming session in this 3-day long webinar. Today we have Professor Gourab Tripathi from St. Xavier's College who would share his views over the common problem during transition from plus 2 level mathematics to UG and how to overcome them. Before that, I would like to welcome Mr. Ajay Krishnanath, the founder and organization head of Zetademy, to share his precious words with us. Thank you. Uh, Good evening, everyone. I am Ajay Krishnanath, the founder of Zetademy and the organization head. It is my pleasure to welcome you to the first day of the 3 days webinar hosted by Zetademy in collaboration with S.M.P.Y.O, welfare organization. As the founder of Zetademy, I am thrilled to see so many of you gathered here today to know how to deal with the common problems we face during the transition period coming from 12th to college math, which is, by the way, our today's topic. And we are very happy to get Dr. Gourab Tripathi, sir, in between us as a speaker. At Zetademy, we believe that education is the key to unlocking one's full potential. हम लोगों का मिशन ये है कि हम जो एजुकेशन एंड क्वालिटी है, क्वालिटी वाला जो एजुकेशन है वो सबके लिए एक्सेसिबल करें, regardless of their location or financial situation. We strive to achieve this by offering affordable online courses for class 11th, 12th, and JEE mains that are tailored to meet the needs of today's learners. Currently, हम लोगों ने ऐसा सोचा है कि let's do something else, something free to provide the students. So that's why we have brought the UG support cell. That is totally a free community. यहाँ पर हम लोगों ने कम्युनिटी बनाया है व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में. तो यूजी लेवल में ऑल इंडिया बेसिस में जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर वो लोग बेनिफिटेड हो पाएंगे. ये कम्युनिटी में बेसिकली हर जगह से स्टूडेंट्स आ रहे हैं अच्छे खासे, तो फिर एक अच्छा एम्बियंस बनेगा, अच्छा खासा डिस्कशन चल सकता है मैथमेटिक्स के ऊपर. तो इससे क्या होगा, जो नॉलेज होता है मैथ्स के ऊपर वो भी एनरिच होगा. And not only that, we have some guest lecturers and experts to help you regarding math problems. तुम लोग यहाँ पर मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो, डाउट पूछ सकते हो, और हम लोग कोशिश करेंगे जितना भी बेस्ट हम लोग आप लोगों को हेल्प करने के लिए. एंड दिस इज टोटली फ्री.
In future, we'll try to do as many seminars as possible on some core topics of mathematics where you think most of the students are interested. So you guys joining us today is giving us to push ourselves also. ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि इतने सारे लोग जुड़ रहे हैं आज. That is a proud moment for us. So we are proud to partnering with Shonarpur Mondalpara Youth Organization. With their help, we want to create a community, whichever I said before, to improving the lives of underprivileged youth through education. Together, we believe that education is the most powerful tool for change, and we are committed to providing opportunities for young people to learn and grow. I would like to thank S.M.P.Y.O for their support and partnership in this endeavor, and I look forward to seeing the impact that we can make together. In closing, I would like to invite you all to explore our platforms. आप लोग हमारे वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.zetademy.com. यूट्यूब प्लेटफॉर्म विजिट कर सकते हैं जहां पर आप लोगों को मिलेगा कि हम लोग जो वीडियोस प्रोवाइड करते हैं दैट दिस आर टोटली फ्री. यू कैन विजिट. और वहाँ पर आप लोगों को आई होप आप लोगों को हेल्प मिलेगा. आप लोग प्लीज वहाँ पर जाइए, एक्सप्लोर करें हम लोगों का प्लेटफॉर्म को. एंड ऑब्वियसली वी वुड लाइक टू हियर योर सजेशंस हाउ वी कैन इम्प्रूव. So this is the basically whatever I was wanting to say. So I hope you will enjoy today's session. Thank you for joining us today, and I hope that you find the seminar informative and valuable. Now I leave it to our host. Thank you all. Thank you, Mr. Ajay Thank you, Krishnanath, sir. for your precious talk. Now I would like to welcome the Secretary of Shonarpur Mondalpara Youth Organization, Chirayata Chatterjee, to share his views on this joint venture. Hello everyone, I am Chirayoto. So one thing I would like to share with everyone here before going on about S.M.P.Y.O and stuff. So please everyone feel free to make your thoughts known, because in this webinar we are just learning as much as you are from the professors. So feel free to ask anything anytime, and the professors themselves have wanted to keep the talks as interesting as and as interactive as possible with you. Now about the organization, Shonarpur Mondalpara Youth Organization, we are practically a social working NGO. We have tried from the beginning of our time to help the underprivileged people as much as possible. Now the question many of you and many people have is that why are we going in for such a joint venture regarding doing such a webinar? The simple reason is that you all, I know you are from various colleges, you are learning several things, you have seen social works happen, but mostly social works happen for people under 15 or above 60, and there are some NGOs working for women's welfare, but very few NGOs or social working teams actually look for students of the age 18 to 21. But according to me, some emphasis needs to be put on the people of these ages, since this is a transitional phase of your lives and many things will happen and you will need the assistance from professors or from your seniors or maybe anyone who you may feel helpful. So that is the goal. And now about Zetademy, it was my plan for a long time to do such a thing. And as you can feel, such webinars are very rare, especially in the field of mathematics, while it is only done for social working reasons and completely for free. Now, I won't bore you with my talks for much longer, as Dr. Tripathi is waiting. Now, I would like to hand it over to our host to introduce the speaker of the session, Dr. Gourab Tripathi. Over to you, Gourab. Thank you for your time. I would like to tell everyone that Chirayata Chatterjee is also our co-host for tonight. Now, I would like to introduce everyone to Dr. Gourab Tripathi, our guest speaker for tonight, currently an assistant professor in mathematics at Xavier's College, Kolkata. Professor Tripathi graduated in mathematics from ISI, completed masters abroad in Bordeaux, France and Padova University, Italy, and was awarded PhD by Jadavpur University.
His love of learning and dedication to continued education makes him an exceptional teacher. His willingness to share knowledge and experience with others has helped and guided students for more than 15 years. The more I speak about him, the less. Sir cracked entrance exams like ISI, CMI, and TIFR, which mathematics community consider to be among the toughest exams in this field. Sir's consistency in performance in such exams is surely phenomenal. He cleared Mathematics Olympiad in regional level and stood fourth in the year 2000 and stood first in the same in 2001. Another feather on his crown is getting All India rank 14 in NET and also an NBHM PhD fellowship. He had made significant contribution in the area of commutative algebra and published articles in many international journals. To sum up, this man never fails to deliver. Today he is here to speak about common problems during the transition from plus 2 level maths to undergraduate and how to overcome them. A significant topic not talked enough about how a proper guidance through the transition can help and build a student's mindset through his or her undergraduation journey. Apart from all his academic achievements and notable career milestones, Professor Tripathi is an avid social worker and a very important guiding figure in our NGO, Sonarpur Mandalpara Youth Organization. So, I would like everyone to join me in welcoming Professor Tripathi. Over to you. Am I audible? Yes, sir. Thank you, Gourab. Just a second. Can everyone see the screen? Yes, sir. Good evening to all of you. I'd like to say that because it's many students from different institutes have joined, I will speak in English. Is that okay with all of you? सर हिंदी में Hindi? यस सर हिंदी 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 में आती है Okay. Okay, I will try to make it a little bit bilingual so that most of you don't have a problem. So, the main problem that when we start from school to college, what is the main problem faced by students? हम लोग को प्रॉब्लम क्या होता है? मान लो कि हम लोग स्कूल तक सिर्फ फुटबॉल खेलना सीखे और अचानक कॉलेज में आके बोल रहा है कि नाम फुटबॉल ही है लेकिन जो तुम खेल रहे हो वो क्रिकेट. So then it becomes a huge problem for all of you. The first thing is interest. हमको फुटबॉल पसंद है, हम क्रिकेट क्यों खेलें? दूसरा बात यह है कि अगर फुटबॉल ही खेल रहा है तो नाम, अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो नाम फुटबॉल क्यों? और तीसरा बात यह है कि अचानक ये चेंज क्यों? तो फिर क्यों हमको स्कूल में फुटबॉल खिलाया गया है और अभी हम क्रिकेट खेल रहे हैं? व्हाई आई एम चेंजिंग इट सडन?
So I would like to say that it is definitely a problem in mathematics, but not a general problem in other areas. Like if you take some subjects like physics, chemistry, जैसे physics में हम लोग पढ़े हैं न्यूटन्स 3 laws of motion, यहाँ पे भी हम लोग वही पढ़ रहे हैं बीएससी में आकर, बीएससी में भी आकर हम लोग वही पढ़ रहे हैं द सेम मैकेनिक्स। हाँ, हो सकता है लेवल थोड़ा हाई है, लेकिन हम लोग वही पढ़ रहे हैं मैकेनिक्स। यहाँ पे न्यूटन का मैकेनिक्स कुछ अलग नहीं बन रहा है, सेम मैकेनिक्स में भी और भी मैथमेटिकल हो रहा है। 11-12 में हो सकता है हम लोग वेक्टर उतना इस्तेमाल नहीं किए हैं, वेक्टर यहाँ पे हम लोग बहुत ज्यादा वेक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ और चीज मैथमेटिक्स से हम लोग बोरो करके यूज कर रहे हैं, लेकिन जो भी कर रहा है हम लोग इसको समझ सकते हैं कि वी आर जस्ट डूइंग एन एक्सटेंशन ऑफ व्हाट वी हैव डन। बट इन मैथमेटिक्स things are changing suddenly. Yes, in 11-12, what are the topics that mostly we people do? एक है integration. So what is that? 11-12 we are given something like this, integrate this. बस हम लोग बगैर कुछ समझ पता है कि इस फॉर्मूला में हमको सब्स्टिट्यूट करना है x इक्वल टू tan थीटा, बस हम लोग सब्स्टिट्यूट करके करते जाएंगे। What happens here? No. Very first day you come to know the very question, real number, फिर आता है Cauchy sequence, ये तो एनालिसिस हो गया। फिर एल्जेब्रा, इसमें आ जाता है ग्रुप्स। ग्रुप हम लोग सब ग्रुप फॉर्म करते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स हैं, लेकिन ये मैथमेटिकल वाला ग्रुप क्या चक्कर है ये हमको पता नहीं चलता। We do not come to know in 12 except 1 or 2 boards that what actually groups are और हमको ग्रुप से करना क्या है। This group, though it is called algebra, algebra में हम लोग क्या पढ़े थे, फैक्टराइजेशन, ऐसी टाइप का बहुत सारे फॉर्मूलाज हम लोग किए थे। We don't find any factorization here. We only find something called binary operation and then all those sorts of groups. तो फर्स्ट हम लोग का प्रॉब्लम यही होता है कि the first problem that we face is interest. We don't find it interesting. हो सकते किसी किसी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग हो, लेकिन हम तो इंटरेस्टिंग इसलिए नहीं होता है। What is the main reason? The main reason is we haven't studied this. और बात है, we wanted to study something else and we are forced to study something else. Then तो हम लोग का ये मतलब होता है कि अचानक मैथ्स में ये सब हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं जो हम लोग पहले पढ़े नहीं। ये पहला है समस्या की बात, और दूसरे भाई इसका समाधान क्या होगा, व्हाट इज द सॉल्यूशन बिहाइंड इट, हाउ कैन आई सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ठीक है, प्रॉब्लम हर किसी को मालूम है क्या है, हाउ टू सॉल्व इट। सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज वी मस्ट अंडरस्टैंड एक्चुअली वी स्टडीड नो मैथमेटिक्स अप टू 11-12 इन जनरल। हम लोग का सिलेबस जैसे डिजाइन किया गया है, हम लोग कोई भी मैथमेटिक्स नहीं पढ़े। अब तुम ये पूछ सकते हो कि क्यों, ऐसा क्यों आप बोल रहे हैं कि कोई मैथमेटिक्स हम लोग नहीं पढ़े हैं, हम लोग इतना सारे मार्क्स लेके आए हैं, इतना किताब पढ़े हैं, कैसे बोल दिए कि हम लोग नहीं पढ़ते हैं मैथमेटिक्स। द रीजन इज एक्चुअली वी हैव रेड मेनी थिंग्स, वी हैव रेड मेनी फॉर्मूलाज, लेकिन मैथमेटिक्स उसको हम लोग नहीं कहते हैं जब तक यू डोंट हैव अ justification for all that you have read in mathematics. Then you can tell me, ठीक है आप कुछ बताइए तो सही, कौन सा हम लोग बगैर जस्टिफिकेशन के किए हैं, और बताइए कि हम लोग की ये रियल नंबर्स, कॉची सीक्वेंस, ये सब वगैरह वगैरह पढ़ के रियल नंबर डेंस है, ठीक है हमको करना क्या है, डेंस है, चलो मान लिया है तो सो व्हाट, रियल नंबर्स इज डेंस, व्हाट आई एम गोइंग टू डू। ओके, तो चलो हम लोग स्कूल में चले जाते हैं और देखते हैं स्कूल में हम लोग क्या पढ़े। If you have read geometry in school level, then you see this, all of us know एक ट्रायंगल है ABC, और दिस इज अ लाइन DE जो इसका समांतरल यानी पैरेलल है। Then we say
कि दोनों साइड आर इन द सेम रेशियो, AD by BD equal to AE by CE. So I think all of you, मैं सबको ये फॉर्मूला मालूम है, हर किसी को ये चीज मालूम है। हो सकता है कि तुम लोग भूल गए हो कोई, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई भूल गया हो। अगर भूल भी गया होगा तो मान लो कि ये तुम लोग पढ़े थे कि अगर एक ट्रायंगल एबीसी है या डीई पैरेलल है बीसी के, तो AD by BD द लेंथ ऑफ द टू लाइंस दे आर प्रोपोर्शन। तो मेरा पहला सवाल ये है कि वाई। तुम बोल सकते हो कि ठीक है, आप कोई भी एक ट्रायंगल लीजिए, एक डीई ड्रॉ कीजिए बीसी का पैरेलल तो होगा। तो मेरा सवाल है भाई, कितना ट्रायंगल ड्रॉ करोगे और कितना डी? जिंदगी निकल जाएगा लेकिन सारे ट्रायंगल ड्रॉ नहीं कर पाओगे। ठीक है, हर एक टाइप का ट्रायंगल होगा, और ये तो जरूरी नहीं कि दो के लिए सही हुआ इसका मतलब तीसरे के लिए भी वो सही हो। देन हाउ कैन आई से दैट दे आर इक्वल? इफ सम ऑफ यू रिमेंबर, तुम लोग ये कहोगे कि नहीं हम लोग ये प्रूफ पहले भी कर चुके हैं। इसका प्रूफ हो सकता है हमें याद नहीं है, लेकिन ये प्रूफ हम लोग कर चुके हैं। बट वेरी सॉरी टू से यू, वी हैवंट डन दिस प्रूफ बिफोर। हम लोग ये प्रूफ नहीं किए हैं पहले। जो किए हो तुम लोग वो मैं बता रहा हूं। तुम लोग ये प्रूफ किए हो कि अगर AD इक्वल टू DB है और DE पैरेलल है, BC का पैरेलल है, तुम लोग जो भी सिंबल यूज किए थे, जस्ट आई सिंपली मीन पैरेलल। अगर पैरेलल है मतलब ये दोनों लाइन कभी मिलेंगे नहीं, कितना भी आगे खींचे जाए या पीछे खींचे जाए कभी मिलेंगे नहीं। देन हाउ कैन यू से दैट they are equal? This you have done in either you called it extra or rider, in which you have proved that AE equal to AC, यानी AE और CE दोनों का मान बराबर है। ये तुम लोग प्रूफ किए हो। इससे क्या हो? नहीं, तुम लोग कुछ और भी प्रूफ किए। तुम लोग ये भी प्रूफ किए थे उसमें कि अगर ये 2 हुआ और ये 4, यानी रेशियो हो गया 1:2, तो भी ये प्रूफ किया जा सकता है कि अगर इस बाहु का लेंथ 3 है तो इसका भी लेंथ 6 होगा। 2/4 मस्ट बी इक्वल टू 3/6। ये भी तुम लोग किए और किताब में लिखा गया है। सो यू कैन सी, तुम देख सकते हो कि हमेशा AD by AB और AD by DB जो भी तुम कहो, इसका रेशियो हमेशा AE by CE का बराबर हो रहा है। लेकिन भाई हम लोग तो सिर्फ 2 केस प्रूफ किया है, इससे कैसे पता चल जाता है? हाँ, इससे कुछ देर तक हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। कुछ देर तक हम लोग प्रूफ किए हैं इसमें कि अगर ये ट्रायंगल होगा और कोई भी एक फ्रैक्शन ले, एक ट्रायंगल ABC है और कोई भी एक फ्रैक्शन ले, मान लो दिस इज 7, दिस इज 11, यानी AD is to BD is 7:11। तो हाँ, ये प्रूफ किया जा सकता है आसानी से। जो तुम लोग सीखे हो उनमें से प्रूफ किया जा सकता है दिस इज इक्वल टू AE by CE। कैसे ये हम प्रूफ करेंगे? ये टोटल हम लोग का 7 है और 11 है, तो 18 ऐसे इक्वी डिस्टेंट 18 लाइन हम लोग खींचेंगे। ऐसे हम लोग 18 लाइन अगर खींच लेंगे, अब तो वही यूज करते जाओ कि अगर इसमें कोई भी एक ये वाला ले लिया, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन, तो ये दोनों बराबर हुआ इक्वल, तो ये दोनों भी बराबर होगा इक्वल। ऐसे करते करते तुम प्रूफ कर सकते हो कि हर एक ये इक्वल है। ऐसे तो AE तक इसका लेंथ कितना हुआ? हर एक इक्वल लेंथ हम लोग x पकड़ लिए, तो AE का लेंथ हो गया 7x और CE का लेंथ हो गया 11x। तो AE by CE ये रह गया 7x by 11x, x कैंसिल होकर ये हो गया 7/11। तो ये हम लोग जो पढ़े थे स्कूल में उसी से ही प्रूफ हो गया कि साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं। लेकिन अगर हम पूछ दिए कि ठीक है,
AD by BD, this is very simple, just 1/√2, यानी कि AD और BD का रेशियो है 1:√2, जिसको हम लोग यहाँ पे सर्ड कहते हैं, या तुम लोग इरेशनल नंबर कह सकते हो, इरेशनल नंबर कह सकते हो। तो ये हम लोग को पता करना पड़ता है कि ये जो सर्ड है, इरेशनल है, तो 1:√2, इसका सॉल्यूशन कैसे आएगा? हाउ एम आई गोइंग टू प्रूव कि AE by CE इसका भी रेशियो 1:√2 हो? हाउ डू आई प्रूव? आई एम आस्किंग टू यू पीपल, तुम लोग का पास इसका आंसर है, जवाब है इस सवाल का? हाउ कैन यू प्रूव? जिसका मन में कुछ भी हो, those who are thinking whatever answer is coming to your mind, you can feel free to ask me. Actually, I just saw Rahul Yadav was raising his hand. If you have any question, you can ask. Okay, so let him, if he has question, he can ask me. I think maybe he's unable to reply. Okay. So, how do I know that AD is to BD equal to AE is to CE? This can never be proved. ये कहना शायद सही नहीं होगा, कैन नेवर बी प्रूव, लेकिन बात ये है, हाँ, आज तक कोई कर नहीं पाया इसका प्रूफ कि AD is to BD इसका रेशियो 1:√2 कोई भी प्रूव नहीं कर सकता। 11 जो हम लोग 12th तक मैथमेटिक्स पढ़े हैं उसके अनुसार। लेकिन बात यह है कि हम लोग के हैं ट्रिगोनोमेट्री में यूज कर चुके हैं, सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री नहीं, कोई भी हायर मैथमेटिक्स में हम लोग ये सब यूज कर चुके हैं, विदाउट एक्चुअली नोइंग कि इसका प्रूफ क्या है, ये सही है या गलत। तो बात है कि हम लोग का स्कूल कॉलेज का मैथमेटिक्स में ये कैसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। इसमें देखो हम लोग क्या किए हैं। सो बेसिकली वी नो दैट इफ द रेशियो ऑफ एनी ट्रायंगल ABC, हम लोग नाम बदल देते हैं नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, A डैश, B डैश और C डैश, कोई भी ट्रायंगल हम लोग ले रहे हैं, और अगर D डैश और E डैश इसका रेशियो अगर रैशनल नंबर हुआ, दैट मीन्स A डैश D डैश by B डैश D डैश, if this is turning to be a rational number, जैसे कि कोई भी फ्रैक्शन ले लो, 3/11, 51/347, तुम लोग कैसे ले रहे हो, तो हमेशा हम लोग ये प्रूफ कर सकते हैं कि इसका भी रेशियो उतना ही आएगा। But the problem is, suppose I tell you that if it is an irrational number, you can. So how to prove that if it is irrational number, the same result holds true? This is because, you see, if ऊपर ट्रायंगल का थोड़ा पार्ट ड्रॉ कर रहे हैं, A, B और B, तो देखो यहाँ पे जो D डैश आया और यहाँ पे जो E डैश आया, D डबल डैश, ये अगर दो पॉइंट हम लोग ले लिए तो ये हो गया तुम्हारा E। अब D डैश ले लिया इसके बराबर, D डबल डैश भी ले लिया इसका ही बराबर। अगर D डैश, A D डैश, हम लोग D डैश लिया, हम लोग लिख रहे हैं रैशनल, मतलब तुम ये समझना A D डैश और B D डैश का रेशियो होगा रैशनल, D डबल डैश का भी रैशनल है, तो इसका जो रेशियो होगा इसका भी रेशियो उतना ही आएगा क्योंकि वो रैशनल है। सेम होगा अगर हम लोग D डबल डैश का साथ इसका रेशियो लिया तो इसका भी रेशियो इतना ही आएगा। तो बात यह है कि AE का रेशियो तुम्हारा क्या आएगा, या तो उसका बराबर जो हम लोग प्रूफ करना चाहते हैं, वी वांटेड टू प्रूव दैट AD by DB
is actually equal to AE by CE. This we wanted to prove. लेकिन अगर ये सही है कि AD by DB equal to AE by CE, then our problem is already done. हम लोग कर दिए ये प्रॉब्लम. लेकिन अगर मान लो कि ये नहीं है, तो ये जो भी रेशियो होगा या तो ये उससे बड़ा होगा या तो कम होगा. तो अगर वो उससे कम हो गया, तो इसका बराबर वाला जो रेशियो है, मेरा कहने का मतलब है, थोड़ा सा डायग्राम सही करें. AD हुआ B. अब तुम्हारे कहने के अनुसार कि ये हम लोग जो ले रहे हैं दिस E, ये वाला देखो, इसका रेशियो बराबर मैच नहीं हो रहा है. वी आर नॉट गेटिंग द एक्चुअल रेशियो ऑफ दिस पॉइंट. तो एक्चुअल रेशियो शायद ये पॉइंट में होता था E डैश, जो शायद इसके बराबर नहीं. तो मतलब AE by CE ये थोड़ा सा बड़ा है, E डैश से थोड़ा सा बड़ा है, तो इट बिकम्स बिगर देन दिस पॉइंट. ये पॉइंट अगर होता E डैश तो रेशियो बराबर रहे. लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसलिए यहां पे एक पॉइंट लेंगे और यहां के पैरेलल एक लाइन लेंगे, जो पॉइंट rational होगा. So we are basically taking D dash such that AD dash by BD dash is rational, and we are picking a point here. We are picking a point here which is parallel. तो जब rational है, ये दोनों रेशियो बराबर होगा. So that means you can see ये जो पॉइंट हम लोग लिए हैं, इसको E डबल, ये डैश नहीं, ये कुछ और है, स्टार है, ये E डैश. तो we got AE dash, हम लोग देख सकते हैं, इज लेस देन AE, और AE डैश बाई ऑब्वियसली तुम लोग देख सकते हो कि AC अगर हम लोग लेंगे तो डेफिनेटली ये हो गया लेस देन AE बाई AC. तो रेशियो उससे छोटा होगा. हम लोग ये देख सकते हैं कि उसका रेशियो से छोटा हो. तो हम लोग का लेकिन इससे छोटा हो गया, भले AE से छोटा हो गया, लेकिन किससे बड़ा हो गया? ऑब्वियसली ये बड़ा हो गया, AE डैश छोटा हुआ. हाँ, AE डैश किससे बड़ा हो गया? ये बड़ा हो गया AE स्टार, ये वाला, बाई AC. लेकिन ये किसके बराबर हुआ था? मैं बोला था कि ये रेशियो उतना ही है जितना AD डैश का रेशियो. तो ये हो गया AD बाई AB का रेशियो के बराबर. लेकिन और ये किससे बड़ा हो गया? ये बड़ा हो गया AD डैश बाई AB का रेशियो से. अब बात है कि ये पॉसिबल नहीं है. थोड़ा सा ऐसे लिख दिया, इसलिए शायद कंफ्यूजन हो रहा है. मैं थोड़ा सा सही तरीका से लिख रहा हूं. अगर ये ट्रायंगल है और यहाँ पे D आ गया और यहाँ पे E था और इसका बराबर रेशियो था ये पॉइंट, इसको हम लोग E सर्कल लिख रहे हैं. और अगर नॉर्मल रेशियो ये था E डैश हम लोग एक पॉइंट चूज किए हैं, दो इनों का बीच में है AD डैश. तो अभी हमको ये पता चल रहा है कि AD डैश बाई AB ये हो गया इसके बराबर AE डैश बाई AC. क्यों? क्योंकि हम लोग D डैश को वैसा एक रैशनल पॉइंट चूज किए. लेकिन ये देख सकते हो कि AE डैश बाई AC ये ऑब्वियसली किससे बड़ा है? AE0 बाई AC. और जबकि AE सर्कल बाई AC ये क्या हो गया? ये बराबर हो गया AD बाई AB. तो मतलब AD डैश बाई AB हम लोग देखते जा रहे हैं, ये बड़ा हो गया किससे? AD बाई AB से.
अब ए बी निकाल दिया गया तो इसका मतलब ए डी डैश ए डी से बड़ा हो गया, जो कि मुमकिन नहीं। ए डी इतना है और ए डी डैश देखो कितना बड़ा है, तो मुमकिन नहीं। तो इसलिए हम लोग जो बोल रहे थे कि ई जीरो जिसका रेशियो ए डी का बराबर होगा वो ऑब्वियसली ई के ऊपर नहीं, उसको ई के नीचे ही रहना पड़ेगा। फिर भी हम लोग यहाँ से और एक पैरेलल ड्रॉ करके ये भी साबित कर सकते हैं कि यहाँ पे दिखा जाए तो भी हम लोग का सेम प्रॉब्लम होगा और ई जीरो नीचे भी नहीं रह सकता। तो एक ही जगह बचा कि ई जीरो इक्वल टू ई, जो हमको प्रूफ करना था वो हम कर चुके। तब तुम बता सकते हो, मैं हो सकते थोड़ा सा जल्दी में बोला प्रूफ, ऑब्वियसली थोड़ा ना वक्त नहीं हम लोग के पास, लेकिन ये शायद तुम लोग घर में चाहोगे तो पूरा कर पाओगे। तो बात ये है कि ठीक है ये तो हो गया, ये भी तो हम लोग एलिमेंटरी मैथ्स नहीं, ये हम लोग एलिमेंटरी मैथ्स करके नहीं किए। क्यों? जैसे हमको कैसे मालूम कि डी डैश जैसा एक पॉइंट रहेगा जिसका रेशियो रैशनल होगा? How do I know that there will exist a point d dash such that a d dash by ab will be a rational number? किसने बताया कि ऐसा रैशनल नंबर हो? और अगर हम लोग d से कोई बड़ा ये पॉइंट भी लिए, कोई और एक पॉइंट भी लेते d डबल डैश, तो किसने बताया कि a d डबल डैश और a b ये भी रैशनल होगा? हमको कैसे मालूम कि हमको ऐसा दो पॉइंट मिलेगा? यही आता है डेंसिटी ऑफ रैशनल्स इन रियल्स। तो अगर रियल नंबर में ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होगा तो हम लोग कभी भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। विदाउट नोइंग दिस फैक्ट दैट रैशनल्स आर डेंस इन रियल्स वी कैनॉट रियली सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो इसलिए हम लोग को ये प्रॉपर्टी जरूरी है जानना। तो इसलिए हम लोग ये प्रॉपर्टी पहले प्रूफ करते हैं हायर मैथ्स। तो हायर मैथ्स में जब हमको एनालिसिस पढ़ाए जाते हैं, व्हेन वी कम टू लर्न एनालिसिस, वी थिंक दैट ओके मे बी वी आर लर्निंग समथिंग कंप्लीटली न्यू। Why do we need to study real numbers? Why do we need to study rational numbers? What's the use? हम लोग करना क्या है? यही कि हम लोग स्कूल का प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए हम लोग यूज किए हैं दैट rationals are dense in reals. Rationals are dense in reals. Without using this result, अगर ये रिजल्ट हमको पता नहीं होता तो जो हम स्कूल लेवल में किए थे ABC is greater than ABC, अगर ये होगा DE इसी का पैरेलल होगा, ये जो डिडक्शन जो है AD by AB इक्वल टू AE by CE, ये सिर्फ मैथमेटिक्स नहीं, फिजिक्स बोलो, केमिस्ट्री बोलो, इंजीनियरिंग बोलो, हर चीज में काम में आता है। इतना इजी हो गया कि हमको लगता है कि हाँ ये प्रूफ करने का है क्या, ये तो होगा ही, लेकिन जो होगा ही वो कभी नहीं होता अगर रैशनल्स रियल्स में डेंस नहीं होता। तो इसलिए हम लोग को सबसे पहले तो रैशनल्स पढ़ना पड़ेगा, फिर तो हमको पता चलेगा कि व्हाई दे आर रियल्स और नो, वेदर रैशनल्स आर डेंस इन रियल्स और नो। तो ये हम तो पहले बताया कि हमको ये क्यों पढ़ाया जाता है रियल्स। द मेन रीजन इज, दिस इज द रीजन व्हाई वी स्टडी रियल नंबर्स बिफोर एंड लेटर वी स्टडी। जैसे कि हम लोग को और भी बहुत चीजें पता नहीं है जो हम अभी बताने वाले हैं। सबसे पहले जैसे एक चीज तुम बहुत सारे लोग किए हो कि अगर f एक फंक्शन है फ्रॉम से क्लोज्ड इंटरवल 0 1 to r, तो रियल्स में अगर ये फंक्शन है और f ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और f कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो इंटीग्रेशन ऑफ f 0 to 1 ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये तुम लोग बहुत धमाके से हम लोग ये प्रूफ सिखाए जाते हैं कॉलेज में, थोड़ा हाई स्टैंडर्ड में किसी के लिए थर्ड ईयर में, किसी को सेकेंड ईयर में ये किया जाता है, दैट यू शो दैट f इज इंटीग्रेबल एंड इंटीग्रेशन ऑफ f इज एक्चुअली ग्रेटर देन 0। तो नहीं कहूंगा, ये कहूंगा कि f इज ग्रेटर देन 0 इफ f इज नॉट आइडेंटिकली 0। तो f अगर 0 फंक्शन नहीं है, मतलब f हाँ हो सकते हैं f 0 के 1 में कभी बार
जीरो हुए हैं, हो सकते कि इसका रूट्स है, ऐसा नहीं कि नहीं है, ऐसा है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन 0 to 1 to f इज ग्रेटर देन 0। ये प्रूफ करने से हमको मिला। हाँ ठीक है तो व्हाट इज द यूज? लेट अस डू वन इंटीग्रेशन। हम लोग एक इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन 0 to 1 x to the power of 4 1 minus x whole to the power of 4 by 1 plus x square dx। ये इंटीग्रेशन अगर तुम करोगे, हाँ टाइम लगेगा, लेकिन अगर तुम करोगे इजी है। ये सिर्फ 1 plus x स्क्वायर, पहले ऊपर को तोड़ दो, तो तुम तोड़ दो 1 minus 2x plus x स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर लेके निकालो, इसका रिमाइंडर निकालो। ये बहुत ही आसान आएगा। इसका आंसर आएगा पाई माइनस 22/7। ये इंटीग्रेशन अगर तुम करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा पाई माइनस 22/7। अब देखो, ये जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर ऑफ 4 इंटू 1 माइनस एक्स होल टू द पावर ऑफ 4 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फंक्शन हमेशा नॉन नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग नीचे देखते हैं तो ये टर्म जो है ये हमेशा पॉजिटिव है। तुम लोग जानते हो कोई भी स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, मैक्सिमम 0 हो सकते हैं। अगर नीचे 0 भी हो गया फिर भी ये 1 के अनुसार ये हमेशा 1 से बड़ा होगा। अगर ऊपर में दिखा जाए तो हर कोई परफेक्ट स्क्वायर है। जो एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर है तो नेगेटिव होने का सवाल नहीं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका भी होल स्क्वायर का स्क्वायर है, तो इसमें भी नेगेटिव होने का कोई सवाल नहीं। तो ये दोनों ऊपर 1 0 हो सकते हैं, ठीक है, वो 0 हो सकते हैं, हम मान के चल रहे 0 हो सकते हैं, लेकिन नीचे 0 भी नहीं, नेगेटिव भी नहीं हो सकता। तो हमेशा ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन हम लोग 0 नहीं कह, नॉन पॉजिटिव नहीं कह सकते, लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि ये फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और अगर हम लोग एफ ऑफ हाफ ले रहे हैं तो क्या होगा? हाँ ठीक है, कुछ भी हो, ये 1/2 टू द पावर ऑफ 4 इंटू 1/2 टू द पावर ऑफ 4 बाई 1 प्लस हाफ स्क्वायर। हमको कैलकुलेट नहीं करना है, हम देख के बता सकते हैं कि ये 0 नहीं है। तो क्या हो गया? हम लोग को एक फंक्शन मिला जो फंक्शन हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और आइडेंटिकली 0 नहीं है। क्यों आइडेंटिकली 0 नहीं है? क्योंकि हाफ एक ऐसा पॉइंट है जहां पे ये 0 नहीं है। और तुम लोग वैसे भी देख सकते हो 0 और 1 ये दो वैल्यू छोड़ के कोई भी वैल्यू ले लो 0 से 1 के बीच, ये फंक्शन f कभी भी 0 नहीं होगा अगर वो 0 और 1 नहीं हुआ तो मतलब ये फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और हमेशा नॉन 0। तो अब सवाल ये होता है कि ठीक है, अगर ऐसा है तो क्या हो? तो रिजल्ट क्या बोलते हैं? रिजल्ट बोलता है इंटीग्रेशन का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। तो हमको क्या मिल गया? पाई माइनस 22/7 ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। इसका मतलब पाई बिकम्स ग्रेटर देन 22/7। जबकि हम लोग का स्कूल में किताब में लिखा रहता है कि पाई इज इक्वल टू 22/7। हाँ, जो थोड़ा गौर से पढ़े हो उसको मालूम है कि ये बराबर नहीं होता है 27 के अप्रोक्सीमेट, लेकिन हम लोग को नहीं मालूम होता कि क्यों इसको हम लोग अप्रोक्सीमेट कहते हैं, क्यों 22/7 नहीं होता। लेकिन इस प्रॉब्लम में देखो, अगर हम लोग हाई कॉलेज का हाई लेवल एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो देखो हमको ये प्रूफ करने को मिल रहा है कि पाई हमेशा 22/7 से बड़ा होगा। पाई के लिए जितना भी प्रूफ है कोई भी इतना आसान नहीं है जितना कि ये है, जिसमें हम प्रूफ कर सकते हैं कि पाई 22/7 नहीं। पाई हाँ ठीक है, तुम ये प्रूफ कर सकते हो पाई इज नॉट अ रैशनल नंबर, लेकिन उसका इससे ये भी साबित हो जाएगा दिस इज नॉट इक्वल टू 22/7, क्योंकि 22/7 एक रैशनल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर है। तो अगर पाई रैशनल नंबर नहीं है तो पाई कैसे 22/7 का बराबर हो सकता है? ये इम्पॉसिबल। लेकिन ये प्रूफ करना कि पाई रैशनल नहीं है ये भी बहुत बड़ा प्रूफ है। इट इज मच हार्डर, इससे काफी गुण हार्डर प्रूफ है। ये जो इंटीग्रेशन है ये बहुत ही आसान इंटीग्रेशन है। 11-12 में तुम लोग इतना सारे मुश्किल इंटीग्रेशन का सामना किए हो, ये उसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन बहुत बड़ा होता है कि इससे हम लोग प्रूफ करने को मिल रहा है पाई 22/7 नहीं। हो सकता है तुमको लग रहा हो इसमें है क्या, हम प्रूफ कर देंगे, तुम कोशिश करो,
देखो तुम प्रूव नहीं कर पाओगे किसी और तरीके से, पाई 22/7 नहीं है। यही एक तरीका, ये सिर्फ नहीं बोल रहा है कि पाई नॉट इक्वल टू 27, ये तुम्हें इतना भी बोल रहा है कि पाई हमें एग्जैक्ट पता नहीं, या तो 22/7 माइनस पाई होगा शायद, या पाई माइनस 27, जो भी हो तुम्हें ये भी पता चल जाएगा पाई 22/7 से बड़ा है या पाई 22/7 से छोटा है। तो ये तो क्या सवाल। तो एक बार क्या हुआ, मैं अपना कॉलेज टाइम में एक दोस्त को बता रहा था, क्या तुम्हें मालूम है पाई 22/7 नहीं है, तुम प्रूव कर सकते हो। क्या हुआ था कि मुझे ये सॉल्यूशन पता था, मुझे पता था कि ये चीज को हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो इससे प्रूव किया जा सकता है पाई नॉट इक्वल टू 22/7। तो उसने मुझे एक अहम सवाल किया, बोला कि पाई का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाई पाई, पाई होता क्या है। अगर तुम बोल दिए कि पाई 22/7 ही है तो पाई 22/7 के बराबर नहीं है, ये बोलना बेकार है। इसका मतलब जो डेफिनेशन हम लोग सुने थे पाई 22/7, ये बिल्कुल गलत है। तो पाई है क्या, पहले तो हमको ये मालूम करना है कि पाई होगा क्या, फिर करेंगे 22/7 या 32/37। So what is pi? If I raise this question that what is pi, तो पाई होता है। तो बात ये है कि तुम लोग ये समझ सकते हो कि पाई क्या होगा। ऑब्वियसली हम लोग जो पढ़े थे परिधि और व्यास, इसको हम लोग कहते हैं सरकमफेरेंस, परिधि यानी परिधि, और इसको कहते हैं डायमीटर यानी व्यास। सो हम लोग बोलते हैं इसको पाई। हाँ ठीक है भाई, कौन सा सर्कल, विच सर्कल, विच सर्कल, कौन सा सर्कल तुम ले रहे हो जिसका सरकमफेरेंस बाय रेडियस बाय डायमीटर, इसको हम लोग डायमीटर बोलते हैं, डायमीटर करके तुमको पाई मिल रहा है। तो तुम बोलोगे कोई भी सर्कल ले लो। अब मेरा एक सवाल, अगर कोई भी एक सर्कल हम लोग ले लिए ऐसे, डोंट गो बाय माय ड्राइंग, आई एम ड्राइंग इन अ बोर्ड सो इट्स नॉट एट ऑल अ सर्कल, ये हम लोग चपाटी बनाते हैं, ये चपाटी का साइज हो गया, चलो हम लोग चपाटी को सर्कल मान के चलते हैं। तो भाई इसका एक रेडियस हुआ, ठीक है मान रहा हूँ, इसका एक सरकमफेरेंस भी हुआ, वो भी मैं मान रहा हूँ, और तुमने एक छोटा चपाटी बना, हम थोड़ा बड़ा बना दिए, तुम छोटा छोटा बना, इसका रेडियस मान लो r डैश है और सरकमफेरेंस c डैश है, इसका c। तो तुम ये बताओगे कि c डैश बाई r डैश इसको भी पाई बोल रहे हो, c बाई r इसको भी पाई बोल रहे हो, भाई क्या गारंटी है कि दोनों का वैल्यू सेम होगा। या तो तुम साबित कर दो कि ये दोनों का वैल्यू सेम होगा, या तो तुम प्रूफ करो कि हाँ क्यों ये सेम हो। अब बात है कि तो इफ यू ट्राई टू सी, तुम लोग का दो चीज समझ में नहीं आएगा। इफ यू गो बैक, तुम लोग देखोगे कि तुम लोग कभी भी नहीं पढ़े हो सरकमफेरेंस होता क्या। हाँ तुम ये बोलोगे कि अगर एक हमको गोल सा प्लेग्राउंड है, तो अगर हमको इसको माप रहे हैं, हाँ ठीक है तुम इसको माप लो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कैसे मापोगे, इसको मापने के तुम्हें रस्सी यानी टेप चाहिए, एक कैलिब्रेटेड मतलब कुछ में जहाँ पे लिखा गया है कि कितना सेंटीमीटर हुआ, ये हुआ। तो ऐसा क्या गारंटी है, कोई भी सर्कल ले लो, कोई भी सर्कल ले लो, उसका जो लेंथ है, कोई भी सर्कल ले लो, इसका जो लेंथ या सरकमफेरेंस जो भी तुम कह रहे हो और रेडियस है, दोनों सेम हो। तुम दुनिया का सारे सर्कल ड्रॉ किए हो, ये देखोगे फिर भी तुम लोग कोई भी किताब में इसका कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन हाँ कुछ किताब में ये कहा गया है कि सर्कल क्या है, सर्कल होता है पॉलीगन, जैसे कि स्क्वायर होता है, जैसे पांचवा के लिए हमारा पेंटागन है, छठा के लिए हमारा हेक्सागन है, ऐसे हम एक एक नंबर बढ़ाते जाएंगे। तो ऐसे हमको रेगुलर यानी जिसका हर एक बाहु दूसरे बाहु के लेंथ का बराबर, तो मतलब ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ, ये सारे की सारे लेंथ बराबर है। तो ये हो गया हमारा, इसको कहते हैं रेगुलर पॉलीगन। पॉलीगन क्यों, पॉली मतलब बहुत सारे, गॉन मतलब बाहु हैंड, और रेगुलर मतलब सब इक्वल है। रेगुलर हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि इक्वल के लिए, तो मतलब एक स्क्वायर का चार बाहु इक्वल होता है तो हम लोग इसको रेगुलर
कहते हैं, पेंटागन के 5 इक्वल होता है, छठा वाला के 6 इक्वल होता है। तो ये बोल रहे हैं कि तुम एक एक करके बाहु बढ़ाते जाओ। तो जब ये बहुत बड़ा हो जाएगा, अगर तुम लोग जिसको कंप्यूटर में ग्राफिक्स वाफिक्स करना आता है तो तुम लोग ड्रॉ करके देख सकते हो कि अगर तुम लोग एक सर्कल ड्रॉ कर लो जिसको 50 साइड्स है, 50 साइड्स है, और वो सर्कल तुम्हारा कंप्यूटर के स्क्रीन से बड़ा नहीं है, पचास साइड है कम से कम, तो तुम देखोगे ये पॉलीगन और सर्कल में तुम्हें कोई फर्क नजर नहीं आएगा, तुम्हारे आंखों में नजर नहीं आएगा। ऑब्वियसली डिफरेंस है, लेकिन तुम्हारे आंख में नजर नहीं आएगा। ठीक है, अगर तुम बोलोगे नहीं मेरा आंख बहुत बढ़िया है, ठीक है 500 साइड ले लो, अभी सवाल ही पैदा नहीं होगा, यू विल लुक लाइक अ सर्कल। भले कि मैं बोल रहा हूं हम लोग कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर तो कुछ नहीं करते, वो इंसान ही करते हैं, कंप्यूटर सिर्फ इंस्ट्रक्शन फॉलो करते हैं। कंप्यूटर जो सर्कल ड्रॉ करता है वो सर्कल नहीं है, वो एक पॉलीगन ही है। भले कि पॉलीगन इतना ही साइड्स का है कि हम लोग को लगता है वो सर्कल है, क्योंकि हम लोग तभी दो चीज का अंतर कर सकते हैं जब उन दोनों का डिस्टेंस लाइट का वेवलेंथ से ज्यादा है। लेकिन ये साइड अगर कंप्यूटर 5000 या 50,000 साइड्स करेंगे तो वो इतना छोटा हो जाएगा कि हम लोग को दोनों में फर्क नजर नहीं आएगा। तो लोग ये कहते हैं कि ओके, हम लोग ये मानते चलते हैं कि एक पॉलीगन जिसका बहुत साइड्स है, बहुत मतलब टेंडिंग टू इंफिनिटी है, सो पॉलीगन विथ मेनी साइड्स, इसको हम लोग कहते हैं सर्कल। मेनी साइड्स, इसको हम लोग कहते हैं सर्कल। तो ठीक है, एक पॉलीगन अगर हम लोग ले लिया जिसका बहुत सारे साइड्स है ऐसे, तो वो ये हो गया सर्कल। तो इसमें हम लोग कैसे निकालेंगे पाई का वैल्यू? अगर हेक्सागन होता तो इसका सरकमफेरेंस मतलब क्या, सारे बाहु का माप। ये अगर ए हो गया तो 6 बाहु का हो गया 6a, ये हो गया तुम्हारा, जिसको हम सर्कल के लिए सरकमफेरेंस कर रहे हैं वही, इसको हम लोग पेरीमीटर कहते हैं, सर्कल को सरकमफेरेंस कहते हैं। और ये रेडियस यानी ये बाहु का माप कितना हुआ, ये हमको निकालना पड़ेगा। तो ये अगर तुम लोग निकालोगे, हम दिखा रहे हैं कैसे निकालते हैं। अगर रेगुलर पॉलीगन होता है तो तुम लोग पढ़े थे बचपन में, ये होता है एंगल होता है 2 पाई बाई मतलब 360 डिग्री बाई इसका होता है। तो अगर 90 हो गया तो ये साइड a/2 हो गया, और फिर ये एंगल कितना हो गया, ये हो गया 180 डिग्री बाई n, और मेरा जो रेडियस हम लोग कह रहे हैं ये लेंथ कितना हो गया, l sin 180 डिग्री बाई n, ये हो गया तुम्हारा a/2। सिंपल ट्रिगोनोमेट्री, ये त्रिभुज के अनुसार हम लोग देख रहे हैं कि यह आ गया l sin 180 डिग्री बाई n। तो हमारा the question that the integration you are talking about, was that simple integration or Riemann integration? Okay, so one question was that integration I was talking about simple or Riemann integration. तो मैं ये कहूंगा कि जब ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसको तुम सिंपल, जैसे तुम 11-12 में किए हो डेरिवेटिव लेकर के, तुम वो लो या तो इंटीग्रेट करो, दोनों बराबर है। ओके, आई विल आंसर योर क्वेश्चन, आई वांटेड टू गिव मोर एम्फेसिस टू योर क्वेश्चन, सो जस्ट आफ्टर आई फिनिश दिस आई विल गो बैक टू योर क्वेश्चन। सो जो हम लोग ये कह रहे थे वो आ गया a/l, तो डायमीटर के हो गया a/12, और हाँ, ये तो एक लेंथ आया और मेरा एक साइड आ गया a/12, लेकिन सारे पेरीमीटर या सरकमफेरेंस क्या आएगा 6a, मतलब जितना तुम्हारा बाहु है दैट इनटू द लेंथ, सो इट विल बी n। तो अगर सर्कल हो गया एक इनफाइनाइट सर्कल, एक सर्कल हो गया एक इनफाइनाइट पॉलिनोमियल, तो हमारा सरकमफेरेंस बाई रेडियस बाई डायमीटर, ये क्या आ रहा है मेरा, एक बहुत बड़ा पॉलीगन है उसका साइड n है, तो ये हमेशा आता है n sin 180 डिग्री बाई। अब देखो हम लोग सही डायरेक्शन में है कि
तुम लोग हर कोई जानते हो, जस्ट इनफॉर्मली हम लोग 180 डिग्री को क्या कहते हैं? पाई। तो ये हो गया n sin पाई बाई n, ठीक है। तो इसको हम लोग थोड़ा मैनिपुलेट कर रहे हैं, लिख रहा है पाई साइन पाई बाई n बाई पाई बाई n। अब तुम बोल रहे हो कि सर्कमफेरेंस बाय डायमीटर, ये कोई एक पॉलीगन है तो उसका वैल्यू आ गया पाई n कनेक्टिविटी। अब तुम्हारा कहना ये है कि n अगर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा का मतलब क्या? टेंड्स टू इंफिनिटी। तो जब एक पॉलीगन होता है उसका नंबर ऑफ साइड्स जब टेंड्स टू इंफिनिटी होता है तब हम लोग इसको सर्कल कहते हैं। तो सर्कल बाय डायमीटर, सर्कमफेरेंस बाय डायमीटर, ये क्या होगा? दैट विल टेंड टू पाई। तो पाई का मतलब क्या हुआ? इज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी सर्कमफेरेंस बाय डायमीटर। तो इसका अगर लिमिट चढ़ाएंगे तो क्या होगा? पाई आ जाएगा कांस्टेंट के लिए, लिमिट हो गया साइन पाई बाई n बाई पाई बाई n। अब तुम तो ये जानते ही हो, जब n टेंड्स टू इंफिनिटी, हर किसी को मालूम है कि जब n टेंड्स टू इंफिनिटी, 1 बाई n या तो कोई भी कांस्टेंट बाई n गोज टू 0, ये हम लोग हर कोई पढ़े हैं। और तुम लोग ये तो तुम लोग को मालूम ही है, साइन एक्स बाई एक्स लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, ये कितना होता है? ये 1। ये हर कोई हम लोग 11-12 में पढ़े हैं। हाँ, कोई प्रूफ किए हैं, कोई प्रूफ नहीं किए हैं, वो अलग बात, लेकिन हम लोग हर किसी को मालूम है कि इसका लिमिट 1 होता है। अब देखो फिर ये क्या आया हमारा लिमिट? तो मेरा लिमिट आया पाई लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी साइन पाई बाई एन बाई पाई बाई एन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पाई बाई एन को अगर x मान के चलते हैं तो लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाई x, ये कितना हो गया? ये वाला लिमिट हो गया मेरा 1। सो इट इज पाई इंटू 1, सो दैट्स व्हाई ये पाई। अभी हम लोग तो बात ये है, तो ये प्रूफ नहीं हुआ, ये ऑब्वियसली हमको पता है कि हम लोग जो निकाले हैं वो कुछ अलग से कुछ टर्म नहीं है, वो पाई ही है। तो मतलब हम लोग पाई को कैसे डिफाइन कर रहे हैं? लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी n साइन 180 डिग्री बाई n। अब तुमको मालूम है कि लिमिट, तो इसमें देखो क्या हुआ, a जो हम लिए थे लेंथ, a हम लिए थे पॉलीगन का लेंथ a है, बहुत बड़ा पॉलीगन है, बहुत सारे साइड्स है और उसका लेंथ a है। लेकिन देखो सर्कमफेरेंस बाय डायमीटर, इसमें कहीं भी a हमें नजर नहीं आ रहा है। इसमें सिर्फ वेरिएबल एक ही है, वो है द n। और ये भी हम जब लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी ले रहा है, इसका मतलब इस n का भी कोई मतलब नहीं रहता जब हम लोग इसका लिमिट ले रहे हैं। मतलब n का हम लोग वैल्यू कुछ बिठा देंगे, यहाँ पे इंफिनिटी। उस तरीके से कहा जाए तो इंफिनिटी नहीं बिठा सकते हैं, वो हमको थोड़ा टैकल करना है, जो हम लोग टैकल किए हैं जैसे यहाँ पे। बट ये है कि ये जो नंबर है लिमिट n 180 डिग्री बाई n, यहाँ पे a कहीं भी नजर नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या? a अगर नजर नहीं आए तो जो डायरेक्टली रिलेटेड टू a था, ये वाला लेंथ l, जिसको हम लोग रेडियस कहते हैं, या तो जिसका दुगना को हम लोग डायमीटर या व्यास कहते हैं, वो कहीं पे हमें नजर नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके मतलब हुआ सर्कमफेरेंस बाय डायमीटर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन रेडियस ऑफ द सर्कल। तो सर्कल का रेडियस कितना भी हो, पाई का वैल्यू, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो तुमको हजार सर्कल नहीं, एक सर्कल तुम निकालो, वही काफी है ये दिखने के लिए कि सर्कल का पाई का वैल्यू क्या है। ऑब्वियसली अगर तुम मेजरमेंट करोगे तो एक्सपेरिमेंटल एरर आएगा, वो अलग बात है, लेकिन हम लोग इस तरीका से पाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। और सिर्फ इतना नहीं, ये हम कह सकते हैं कि तुम एक सर्कल ड्रॉ करो, इफ योर मेजरमेंट इज परफेक्ट देन देयर इज नो एक्सपेरिमेंटल एरर। एक्सपेरिमेंट करते हुए हमें कुछ गलत सलत नहीं हुआ है तो हम लोग ये प्रूफ कर ले कि कोई भी सर्कल हो, उसका रेडियस कितना भी हो, सर्कमफेरेंस बाय रेडियस हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, और उसी कांस्टेंट का नाम हम लोग पाई देते हैं। अब
पाई से हम लोग चले जाते हैं कि हकीकत में हमको समझ में आ गया पाई क्या है और नहीं समझने में क्या है, पॉलीगन क्या है मालूम है, हो गया। तो भाई हमें ये समझाओ कि 180 डिग्री, ये डिग्री क्या है, डिग्री है क्या, एंगल है और क्या। ये एक दो स्ट्रेट लाइन ले लो ए बी और सी, ये एक एंगल है, तो ये हो गया हमारा एंगल। तो एंगल से जाने से पहले मैं फिर से, जो एक स्टूडेंट ने सवाल किया था दैट इंटीग्रेशन, सो लेट मी टेल यू दैट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन कि हम लोग कोई भी फंक्शन लिए हैं जैसे 1 माइनस एक्स होल टू द पावर ऑफ 4 एक्स टू द पावर ऑफ 4 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स, ये जो हम लोग लिए थे, इसको हमको इंटीग्रेशन कैसे करना है, रीमान इंटीग्रेशन। हाँ ऑब्वियसली ये तुम रीमान इंटीग्रेशन कर सकते हो, ट्रू है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा इसको रीमान नहीं, इसको जिस तरीके से तुम 11-12 में जैसे किए थे एंटी डेरिवेटिव लेके, मतलब ये फंक्शन तुम अगर एक पॉलीगन की तरह लिखोगे तो कुछ ऐसा तुम्हें आएगा x टू द पावर ऑफ 11/7। मैं ये जस्ट ऐसे लिख रहा हूँ, मेरा अपना मन से लिख रहा हूँ, जो आने वाला है मान लो ऐसा करके कुछ आ गया 1/1 प्लस x², इसको इंटीग्रेट करो। तो तुम बता सकते हो इसको हम लोग कैसे करेंगे, हमको मालूम है ये फॉर्मूला से करते हैं। तो क्या, और ये जो मैंने बोला था कि if f is greater than 0 then इंटीग्रेशन ऑफ f ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, ये तो हमको रीमेन इंटीग्रेशन में, और जिसका वैल्यू हम मान निकाले थे 22/7 माइनस पाई या पाई माइनस 22/7, एक बार देख लेना क्या आ रहा है। तो ये तो हम नॉर्मल इंटीग्रेशन से किए थे, तो क्या दोनों क्यों बराबर है, ये बहुत ही अच्छा सवाल जिसने उठाया था, ये सवाल बहुत ही अच्छा है, ये तो नॉर्मल इंटीग्रेशन में है। तो मेरा नॉर्मल इंटीग्रेशन और रीमान इंटीग्रेशन दोनों सही है या नहीं, हाँ दिस इज करेक्ट भाई। ये भी हम लोग वहीं पे पढ़ते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस कर सकते हैं कि अगर तुम्हें कोई एक फंक्शन मिले जिसका डेरिवेटिव यह होगा, तो हम लोग उस तरीका में भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि रीमान इंटीग्रेशन से अगर तुम ये करने जाओगे तो कम से कम 1 साल तो लगेगा ये चीज तुम्हें इंटीग्रेट करने में। लेकिन यही तुम अगर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस करोगे तो भले ये डिवीजन थोड़ा सा बोरिंग हो, लेकिन मैक्स टू मैक्स मुझे 10 मिनट लगेगा, और तुम लोग जो 11-12 से पास होके आए हो तुम लोग को 5 मिनट लगेगा ये करने में और इसका आंसर निकालने में। और 10 मिनट में मैं करूंगा, मैं जरूर गलत लिखूंगा, तुम लोग सही लिखोगे, इतना भी करोगे। सो ऑब्वियसली यू कैन यूज नॉर्मल इंटीग्रेशन व्हिच इज आल्सो ट्रू बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। तो बात ये है कि दैट इज व्हाई वी स्टडी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ये प्रूफ इसलिए किया सकता है क्योंकि ये तो डेफिनेशन हो गया रीमान इंटीग्रेशन, ठीक है, ये डेफिनेशन हो गया, डेफिनेशन से हम, ठीक है एक डेफिनेशन है, लेकिन नॉर्मली हम लोग जो इंटीग्रेशन 11 में 12 किए हैं वो क्या इससे अलग है, ये वही है, हाँ ये वही है, बस सिर्फ तरीका अलग है। ये थोड़ा मुश्किल है इसको निकालना, डेफिनेशन थोड़ा इजी है और इसको आसान है करना। तो ठीक है, तो इसको हम लोग फिर से बाद में फिर से दोहराएंगे सवाल को। तो हम लोग अभी जो पूछ रहे थे हम, वो है कि एंगल, एंगल क्या है। तो हमें हर किसी ने, ये तुम लोग यकीन करोगे या नहीं वो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन मैंने कहीं टीचर्स को भी पूछ चुके हैं कि एंगल का मतलब क्या होता है। तो बोला कि दो बाहु ये एओ या ओसी, इन दोनों के बीच में जो है, तो मैंने क्या किया, तुरंत एक सेफ ड्रॉ किया एप्पल, और बोला कि ठीक है तो दोनों के बीच में तो एप्पल है, तो एंगल का मतलब क्या सेफ हुआ एप्पल। बोल रहे नहीं, अब मजाक कर रहे हो, हाँ मजाक कर रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा डेफिनेशन सही है नहीं, तुम बोल रहे हो बीच में क्या है, ठीक है बीच में महाशून्य है, ब्लैंक स्पेस, ब्लैंक स्पेस या ब्लैक होल, व्हाइट होल, या तो ब्लैक होल नहीं होगा, ये तो व्हाइट होल होगा, तो जो भी हो, तो क्या है क्या एंगल, किसी को भी पूछो, तुम लोग खुद अपने आप से सवाल पूछो, देखोगे तुम्हारे पास, बहुत सारे लोगों के पास इसका कोई जवाब नहीं है कि ये है क्या, व्हाट इज एंगल। तुम लोग का मसला ये है कि एंगल कुछ चीज ऐसा है जो हमें समझ में आता है, लेकिन वो है क्या ये हम लोग को मालूम नहीं, बिकॉज वी हैव नेवर बीन डिफाइंड एंगल। हम लोग को यही कहा गया है, दो बाहु अगर एक बिंदु में आकर मिल रहे हैं तो दोनों के बीच में जो है उसको हम लोग, कितना दूरी है एक दूसरे से, तो ये हम लोग मेजर करते हैं एंगल। तो कितना दूरी मेजर करना है, तो यहाँ पे 2 पॉइंट लो, ड्रॉ करो, बस दूरी मेजर हो गया।
तुम बोलोगे नहीं ये दूरी और ये दूरी भी तो बराबर नहीं हुआ। नहीं हुआ तो तुम बताओ कौन सा हमें लेना है। अब बात ये है कि तुम तो बोल रहे हो कि नहीं ठीक है हम एंगल पढ़े हैं, एंगल ही दूरी मेजर करते, ठीक है। देन यू टेल मी ये एंगल कितना है। तुम लोग अंदाजा से लगाओगे ये कुछ भी एंगल, लेकिन मेरे बात जरूर मानोगे कि एंगल और कुछ भी हो 120 डिग्री तो नहीं, ये तो 100% हर किसी को मालूम। तुम बता सकते हो, कोई बताएगा 60 डिग्री है, कोई बताएगा 70 डिग्री है, कोई बोलेगा 70 और 60 के कुछ भी है, लेकिन कोई भी एक बेवकूफ भी नहीं ये बताएगा कि ये 120 डिग्री है। मैं बोलूं ये 120 डिग्री है तो कैन यू कॉन्ट्राडिक्ट मी? तुम्हें बता सकते हो नहीं, ये किस तरीके से तुम बता सकते हो 120 डिग्री? तुम बोलोगे कि हाँ हमको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, तुम्हारा ज्योमेट्री बॉक्स में ऐसा एक चीज है जिसको हम लोग प्रोटेक्टर कहते हैं, जिसके हम लोग, तो मैं बोलूंगा कि ये प्रोटेक्टर सही नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। जो इंसान ने ये बनाया है वो मैथ्स नहीं पढ़ा था कॉलेज में, स्कूल तक पढ़ा था, इसलिए गलत सलत बोल रहा। मैं जो बोल रहा हूँ ये गलत है, ये पूरा गलत है। तुम कैसे बोलोगे नहीं यही सही है? जरूरी है कोई और लिख दिया किसी किताब में है या कोई कुछ बिक रहा है, इसके ये मतलब नहीं कि वो सही है। इंटरनेट में तो हर चीज बिकती है, इसके मतलब थोड़ी है कि वो चीज सही है। द मेन थिंग इज हम लोग को किसी को नहीं पता है एंगल होता क्या है, rather what is एंगल। हम लोग को सिर्फ इतना मालूम है एंगल कुछ चीज है जो जोड़ते जाते हैं, जोड़ने से बढ़ते हैं, सब कुछ है, बट व्हाट इज एंगल इट इज नॉट। क्योंकि हम लोग को स्कूल में जो यूक्लिडियन ज्योमेट्री पढ़ाए जाते हैं, जो ज्योमेट्री हम लोग पढ़ते हैं और कुछ नहीं है, वो यूक्लिडियन ज्योमेट्री है। यूक्लिड के टाइम में किसी को मालूम नहीं था एंगल क्या है। जिस तरीके से तुम समझ रहे हो एंगल क्या है, यूक्लिड भी इतना बड़ा मैथमेटिशियन होते हुए भी उसके टाइम में यही समझ में आता था कि एंगल बस तो वही जितना का दूरी हम लोग समझ रहे हैं उतना ही हो गया एंगल। तो बात यह है कि मैथमेटिक्स को अगर हमको सही तरीके से पढ़ना है तो ये जानना बहुत जरूरी है एंगल क्या है। हमको ये भी मालूम करना है कि ठीक है एंगल तो होगी, उससे भी आसान चीज है साइन 30 डिग्री। ये क्या हुआ? तुम बोलोगे कि अगर ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री लग तो नहीं रहा है, मान लो 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ए बी सी, तो ये हो गया साइन का मतलब हो गया साइन ऑफ दिस एंगल इज ए बी बाई ए सी। नाउ अगेन यू विल आस्क द क्वेश्चन, हम लोग ये बोलेंगे कोई एक बड़ा सा ट्रायंगल ले ले जिसका भी एंगल है 30 डिग्री, बहुत बड़ा ट्रायंगल ले ले, कैसे मालूम कि ये रेशियो भी उतना ही रहेगा? ये तुम लोग आसानी से कह सकते हो, अभी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि अभी अभी हम तुमको ये बोला है। अगर ये बड़ा ट्रायंगल है, मेरा छोटा ट्रायंगल है, दोनों का एंगल सेम है, थीटा है, तो अभी अभी हम लोग बोल सकते हैं कि ये पैरेलल है, जो तुम पढ़े थे ये पैरेलल है, अवश्य पैरेलल है। और अगर पैरेलल है तो हम लोग अभी अभी पढ़े हैं कि ए डैश बाई बी बाई ए सी, ए डैश सी विल बी इक्वल टू ए बी बाई ए सी, यानी कि ये अभी हम लोग प्रूफ किए हैं रैशनल नंबर इरेशनल नंबर, वही वाला सवाल में। ऐसे हम लोग कहते हैं कि एंगल अगर फिक्स्ड है तो साइन का वैल्यू भी दोनों का सेम है। इसलिए साइन लेंथ ऑफ द ट्रायंगल के लिए कुछ नहीं बोलता, एंगल अगर चेंज नहीं होता तो साइन का वैल्यू कभी चेंज नहीं होता। तो साइन ऐसा एक हमारा फंक्शन हो गया जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि साइन का वैल्यू कभी एंगल के ऊपर सिर्फ डिपेंड करता है। लेकिन मैं कहूंगा कुछ और, साइन के वैल्यू एंगल के ऊपर या कॉस के वैल्यू एंगल के ऊपर डिपेंड नहीं करता, बल्कि डेफिनेशन ऑफ एंगल साइन और कॉस के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब हम लोग ऐसे बोलते हैं कि इफ साइन ऑफ थीटा इज हाफ एंड थीटा इज बिटवीन 0 एंड पाई बाई 2 90 डिग्री, तो इसका मतलब हो गया कि थीटा शुड बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये 60 डिग्री इक्वल नहीं हो रहा है, ये 60 डिग्री का डेफिनेशन है।
दो बिंदी लगाने का मतलब होता है कि उसका डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन होता है थीटा का वैसे ही दिया जाता है कि अगर मान लो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 0 और वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो अगर थीटा यहाँ पे कहीं रहता है तो ये थीटा हो गया। तो थीटा का डेफिनेशन हो गया साइन इनवर्स एक्स, जो हम लोग पहले पढ़े थे, इसका डेफिनेशन है। मतलब तुम अगर एक्स का मैं वैल्यू दे रहा हूँ 1/√3, तो अगर साइन थीटा 1/√3 है कोई थीटा के वैल्यू के लिए, जो वैल्यू के लिए 1/√3 होगा वही 30 डिग्री थीटा अगर 1/√3 है, तो ये हो गया थीटा के डेफिनेशन। तो हाउ डू वी डिफाइन थीटा? वी डिफाइन थीटा एज इनवर्स ऑफ द फंक्शन। इसलिए हम लोग को इनवर्स फंक्शन पढ़ाया जाता है। हम लोग को ये पढ़ाया जाता है पहले फंक्शन क्या है, एक्स से वाई में एक सेट है, और अगर ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, अगर ये फंक्शन बाइजेक्टिव है तो हम लोग इसका इनवर्स डिफाइन कर सकते हैं। जैसे एफ इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू एक्स, मतलब अगर एफ एक्स इक्वल टू वाई होगा तो हम लोग बोल सकते हैं एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स। क्यों वाई होगा? क्यों वाई के लिए हमें एक एक्स मिलेगा? मैं बताया गया फंक्शन बाइजेक्टिव है, इसका मतलब सर्जेक्टिव है, तो हर एक वाई के लिए हमें एक स्मॉल वाई मिलेगा, और उसके लिए एक प्री इमेज हमको एक्स मिलेगा, जो एफ ऑफ एक्स वाई होगा। तो इसलिए एफ इनवर्स ऑफ वाई इसलिए इक्वल टू एक्स होगा। तो इसीलिए हम लोग ये बता सकते हैं कि ये जो साइन फंक्शन, ये अगर हम लोग दिखा सकते हैं कि 0 to π/2, इनमें ये फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है, इसमें अगर ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, तो हम लोग ये बता सकते हैं कि कोई भी वैल्यू लो, इसके बीच में 0 to 1 ऑब्वियसली है, के बीच में कोई भी वैल्यू हो, इसका एक वैल्यू है। इस साइन इनवर्स ऑफ कोई एंगल एक्स लिया, इसको हम लोग डिफाइन करता है एज द एंगल थीटा। तो तुम ये बता सकते हो कि अगर ये हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि ये थीटा है, तो तुम्हारा सवाल मन में ये सवाल हो रहा है, अरे भाई हम तो साइन डिफाइन ही किए हैं एंगल से, तो आप पहले मान लिए हैं कि साइन कुछ है फिर एंगल डिफाइन कर रहा है, तो साइन होता क्या है? तो तुम देखते जाओ कितना भी हमारा संज्ञा यानी डेफिनेशन कितना बदलते जा रहा है, जितना हम स्कूल में पढ़े थे और उससे अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइन? द डेफिनेशन ऑफ साइन इज नो लॉन्गर रेशियो ऑफ टू साइड्स। एक राइट एंगल ट्रायंगल लो ए बी सी, तो यहाँ पे दो साइड का रेशियो साइन नहीं, ये नहीं है। तो साइन का डेफिनेशन क्या है? साइन का डेफिनेशन है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस x5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस x7 बाई 7 फैक्टोरियल, ऐसे इन्फिनिटी तक जाता है ये सीरीज। ये होता है साइन। कोई भी रियल नंबर के लिए साइन कुछ नहीं है, जस्ट एक फंक्शन है एफ एक्स, जिसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके हम लोग कैसे दिखाएंगे कि साइन पीरियोडिक है, साइन का 0 में वैल्यू 0 है, π/2 में 1 है, ऐसे हम लोग कैसे दिखाएंगे? हाँ, फॉर एवरीथिंग ऑफ दिस प्रूफ हम लोग एनालिसिस में पढ़ते हैं जो पावर सीरीज और सीक्वेंस ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शंस, और क्या, कॉची सीक्वेंस सीरीज, ये जो सारे हम पढ़ते हैं ये सारे दिखाया जा सकते हैं। इसमें दिखाया जा सकता है कि ये जो सीरीज है ये और कुछ नहीं है, तुम देखोगे ऑल्टरनेट प्लस और माइनस है। तो हम लोग को मालूम है, जो तुम लोग थोड़ा बहुत एनालिसिस पढ़े हो लीबनिट्ज टेस्ट से, कि ये फंक्शन हमेशा कन्वर्ज करेगा, इसलिए कोई भी वैल्यू के लिए साइन डिफाइन होगा। लेकिन यही अगर तुम लॉग से लोगे तो लॉग हर कोई वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं होता, क्योंकि लॉग का जो पावर सीरीज है वो हमेशा कन्वर्ज नहीं करता है। अगर वो नेगेटिव हो गया तो लॉग का वैल्यू कन्वर्ज नहीं करता, लेकिन साइन का हमेशा करता है। अब इससे हम लोग ये भी प्रूव कर सकते हैं कि अगर हमारा सेट क्लोज्ड और बाउंडेड है या तो कॉम्पैक्ट है, देन दिस कन्वर्जेंस इज यूनिफॉर्म। इससे हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं कि अगर कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म है तो इसमें क्या है, तुम जानते हो कि x f1x इक्वल टू x, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। तुम ये भी जानते हो f2 ऑफ x यानी कि x³ बाई 3 फैक्टोरियल माइनस, ये फंक्शन भी कंटिन्यूअस है। क्यों? क्योंकि एक पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो अगर f1 कंटिन्यूअस है, f2 कंटिन्यूअस है, f1 प्लस f2 भी कंटिन्यूअस है,
यानी फंक्शन इतना तक कंटिन्यूअस। तो मतलब हम लोग कितना भी जोड़ते जाएंगे फाइनाइट तक, ये सीरीज को अगर तुम फाइनाइट तक देखोगे तो ये सीरीज हमेशा पॉलिनोमियल हो। अगर पॉलिनोमियल हो रहा है तो मतलब हमेशा ये सीरीज कंटिन्यूअस हो। अब एक थ्योरम है जो पावर सीरीज में हम लोग पढ़ते हैं कि अगर कन्वर्जेंस यूनिफॉर्म है तो ये इनफाइनाइट पॉलिनोमियल, हम लोग इनफाइनाइट को पॉलिनोमियल नहीं कहते, फिर ये हम लोग फॉर द मोमेंट उसको पॉलिनोमियल मान के चलते हैं। तो हम लोग को वो थ्योरी क्या बताया, अगर पॉलिनोमियल कंटिन्यूअस है तो यूनिफॉर्म पॉलिनोमियल यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करता है, तो वो जो इनफाइनाइट पॉलिनोमियल है यानी कि साइन, ये भी कंटिन्यूअस होता है। और इसी तरीके से हम लोग प्रूफ करते हैं साइन कंटिन्यूअस है। इसी तरीके से हम लोग ये भी प्रूफ करते हैं कि साइन डिफरेंशिएबल है। इसके बाद हम लोग का आता है डेफिनेशन ऑफ एंगल। तो मैं इतना ही कहूंगा कि जो स्कूल में हम लोग पढ़े थे वही हम लोग पढ़ रहे हैं एक नई चेहरे से। क्यों? क्योंकि ये जरूरी है, क्योंकि स्कूल में, क्योंकि हम लोग छोटे थे, सब चीज हम लोग को पहले दिन समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम लोग को कुछ चीज एज्यूम किया गया है। बाद में देखा जाएगा कि वही स्कूल का मैथमेटिक्स हो रहा है। जब तुम और भी हायर स्टडीज करोगे मैथ्स के लिए, द सेम थिंग्स विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग, बट यू विल सी दैट इन बिटवीन जो तो हम लोग कॉलेज में पढ़ रहे हैं ये होता है एक ब्रिजिंग, एक ब्रिज कह सकते हो। ये होता है एक तरीका के काउंसलिंग, एक तरीका के ट्रेनिंग, जिसमें जो मैथ्स तुम पढ़े हो वो बच्चों के लिए है। बच्चों का मैथमेटिक्स का मतलब इजी नहीं, बच्चों का मतलब मैथमेटिक्स का मतलब ये है कि सही तरीका से नहीं, इट इज नॉट द करेक्ट वे और द करेक्ट मेथड और मे नॉट बी द लॉजिकल पाथ। बच्चे थे, तुम लोग भी एक्सेप्ट कर लिए और हम लोग भी इसका ये फायदा उठाए थे कि लोग बच्चे हैं, इन लोग सवाल नहीं करेंगे इस चीजों। लेकिन जब कॉलेज में आओगे, बाद में तुम जाओगे, ये सवाल तुमको दौड़ाएगा कि ये क्यों है, साइन क्यों कंटिन्यूअस है, हाँ एंगल होता क्या। सो एवरीथिंग आर डिफाइंड इन कॉलेज। कॉलेज के बाद भी बहुत चीज है जो तुम्हें कॉलेज में डिफाइन नहीं किया जाएगा, बाद में डिफाइन किया। तो सारी चीज हम लोग जो कॉलेज में पढ़ते हैं वो वही मैथ्स का कंटिन्यूएशन है, कुछ नहीं है। बस सिर्फ इतना ही कि जो हम लोग सही तरीका से नहीं किए हैं वो हम लोग अभी सही तरीका से करें। अब ट्रेनिंग हमेशा मुश्किल का होता है, इसलिए कॉलेज का स्टडीज थोड़ा बहुत मुश्किल का होगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ जो तुमको आसान लग रहा है 11-12 का मैथ्स, वो तो आसान है। याद करो 10 साल पहले जब तुम 3-4 साल के थे, तब क्या थोड़ी तुम्हें ये सब मैथमेटिक्स आता? तो तुम 11-12 का आसान मैथ्स के लिए जिंदगी का 12 या 15 साल खर्चा किए, तो कॉलेज का 2 साल तो जिंदगी का मैथमेटिक्स के लिए खर्च करना ही मांगता है। तो हम लोग वही करेंगे। तो जब भी तुम लोग को ये का मैथमेटिक्स पढ़ना है, बेस्ट वे टू स्टडी इज सिर्फ किताब में जो लिखा है वो मत पढ़ो। बहुत सारे ऐसे किताब रहते हैं, हम लोग, इफ यू समवन मेल टू मी और आस्क मी, आई विल टेल यू देयर आर मेनी बुक्स where you can see the real application of the abstract mathematics, और कैसे 9, 10 और 11, 12 में जो सारे सवाल का हम लोग एज्यूम कर लिए उसका प्रूफ कैसे। So with this I am concluding today. Obviously ready for answering your questions if some of you have. So now I request to students that after the session of sir, if you have any questions to ask, please go ahead. I mean, it can be any question regarding any help. Sir is very helpful and he has kindly accepted to grant his time for the Q&A session. So please feel free to ask your questions, and before that it will be very helpful if you can raise your hands through Meet before asking the questions, so you can ask one by one.
Okay, so as of now, I cannot see any questions, or even in the chat box there are no questions. Sir, I have a question. Yeah, please go ahead. From Yes, please. Kharagpur College. From Yes, please. Kharagpur College, I am Gourango Bag. Sir, I asked to right direction to study mathematics. Well, I will say that so there is something called practical. So first thing I will say that obviously one thing you must follow what is going your class. You should not. Your first priority should be that you get good marks in college, and so follow what is going on in the class. That is one thing. That is must, I will say. But yeah, really, if you want to study mathematics, so I will tell you that uh, the first and foremost thing is that don't accept anything without, like, ask very bogus questions to yourself. 3 plus 4 is 7. Why is it 7? Why not 8? Do I have an answer to that? You make it up. Now you ask your teacher. You can go through the internet. Nowadays lot of things are available in internet. In our times we didn't have the chance for those things. Nowadays there are many teachers also around who can help you in this regard. The best thing is that you should uh, go and sit and ask every question that comes to your mind. Not that every question you will be able to solve by yourself, but I think most of the questions you will get some answer if you try by yourself. So that's the first thing I will say. And secondly, I will tell to do some good mathematics, make it a habit of reading some international text. Textbooks. Don't only follow the Indian textbook. Indian textbooks are very good and easy to read, but the problem is our mind does stops thinking because everything is done in the Indian textbooks. If you really want to learn and do make it a practice alongside reading with the Indian textbooks. Do try to read some foreign author textbooks, which may be difficult to read, but I will tell you, they will help you to think, which will be helpful for developing mathematics within yourself. Gorango, you are not audible. सॉरी सॉरी Oh, मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस का मीनिंग क्या है प्रैक्टिस का माने मतलबটা কি प्रैक्टिस माने কি so practice. So here I will say that no, I think I didn't tell you that practice mathematics 11, 12 was very much practice based. There was some exercise. প্রশ্নমালা আছে আমরা প্রশ্নমালা দেখে সলভ করি but here the problem is that mostly when we go to pure mathematics we don't have many good exercises. So practice, I won't mean that here there will be the practice, the kind of practice we do, but we will see that the more different ways we think, the more ways our more ভ্যালু চেঞ্জ ideas. করে করে মেনি ভ্যালুস চেঞ্জ করে করে অঙ্ক করতে হবে না সেটা তো কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঠিক আছে যেগুলো একটু ক্যালকুলেটিভ প্রবলেম, কিন্তু আমি যদি অ্যানালিসিসে বা গ্রুপ থিওরিতে এসব জায়গায় করি, এখানে তো ভ্যালু চেঞ্জের ব্যাপার নেই। এখানে আমাকে দেখতে হবে যে আমি জিনিসগুলো করতে পারছি কি, মানে বিভিন্ন ফল সেমিস্টার বটম সেমিস্টারে প্রচুর এক্সারসাইজ প্রবলেমস পাওয়া যায় এবং ভেরি মাচ থট প্রভোকিং কোয়েশ্চেন্স, যেটা আমাদের হেল্প করে টু লার্ন দ্য সাবজেক্ট। Thank you, sir. Thank you to you also. And one thing I would like to say you that if anyone has, including you, anyone has any question, can directly ask us in the S.M.P.Y.O help cell in the WhatsApp group, and many of us are there ready to help you whenever someone needs some help. Thank you, sir. All right, so if any other student has any other question, so please ask.
Okay, so as of now, I cannot see any more hands or such. I would just like to, before concluding, I would just like our host to share that one image, because our sir, he is an excellent professor, of course, but Acha, Ovik De seems to have a question. Ovik De, please ask. Ovik De, you have written, you have a question, so please ask. Sir, I have a question. গৌরাঙ্গ বাগ। Yes, please. হ্যাঁ স্যার, আমি তো এখন বিএসসি ফার্স্ট সেমিস্টারের স্টুডেন্ট, তো পরবর্তীকালে যদি পিএইচডি করতে যাই স্যার, এখন থেকে আমাদের কি মানে পথ অনুসরণ করা দরকার আছে? আমি তোমাকে যেটা বললাম একটু আগে যে ডাইরেক্টলি Excuse me, sir. Sorry to interrupt. Yes? Can you please speak the answer in Hindi or English? Okay, sure. So I would like to say that if you are now first in BSc, so first year, so I will tell that you don't immediately you have to think of choosing something in PhD. I tell you what happens is before going to PhD, it is very important to know that which area you want to go, and you, so best is first I will tell that you see the world means the world of mathematics, see its different branches, do your mathematics properly, don't be snobbish towards some areas. No, I don't like this area, I like this area, humko yahi karna hai, humko wo nahi karna hai. No, don't become like this. I will say that you study all the ways. There is a huge battle between some people telling, hey, that is applied mathematics, I won't study. Hey, that is pure mathematics, I won't study. I don't like probability, I won't like group theory. Don't make any such inhibitions at this initial stage. Read all the subjects. Gradually you will find that you are inclined to few subjects while you are not inclined to other. This you first decide in graduation, that what is your inclination. And as I told you that if you have aspirations for PhD, that means higher study, so side by side while studying, you also keep in mind of JAM, then there is GATE exam, finally there will be NET exam. So at your stage, I will say that you keep your aggregate as high as possible. Jitna marks okay, वो always मुमकिन है, फिर भी जितना तुम्हारा स्कोर हाई रहेगा उतना ही अच्छा है. एंड ट्राई टू क्रैक द जैम एग्जामिनेशन, बिकॉज इफ यू क्रैक द जैम एग्जामिनेशन, लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज विल बी देयर फॉर यू. और some people might think that okay, JAM is actually going to IIT, NIT, they are very high standard. I'm telling you, no. Yes, definitely they are good institutes, their standard is high. But when is their standard high? Their standard is high when you study mathematics there. But for getting admission there, you will see only people like you are getting admitted, and it's actually people who are even worse than you are actually getting admitted. So never think that it is difficult to crack JAM. You must think of the not only JAM, any other competitive exams, all the competitive exams you might think, and very most importantly, you must choose your inclination by the end of third year graduation. That's all. What the Ovik is asking, what is the basic difference between applied maths and pure maths for future higher studies prospect? So first of all, I would like to say that this has been a very bad, belief that pure mathematics, applied mathematics. I will say that your country is divided, many states are also getting divided. Let us don't divide mathematics. Let's keep it one mathematics. There is nothing called applied mathematics, nothing called pure mathematics. I simply argued with the person, okay, differential equation I am interested. Is it applied mathematics? It is pure mathematics. He told it is applied mathematics. Oh, all calculations. I told you, go see these books. Have you ever seen? Tell me one single calculation in differential equation you can show me. First read the book, then tell whether it is applied or pure. So tell me, first of all, there is no difference between applied maths and pure maths if you really want to study mathematics. But if you tell me, but the society is making a difference, yes, that is true. That is true, society is making difference. There are different institutes more inclined towards applied mathematics. There are institutes more inclined towards pure mathematics. So we cannot escape the real world. Now, if you tell me
which one to choose between applied maths and pure maths if you think of higher studies. If you think of higher studies, I will tell you that higher studies, not only mathematics, every subject is very difficult. So you have to really study whichever area you want to go. It is very difficult, equally difficult to succeed in both the branches. But if you tell me that which is more money making, if you tell me is it easier to get jobs if I go for applied mathematics, or is it easier to get jobs if I go for pure mathematics? No question to that. Obviously, applied mathematics, the job perspective is much higher than that of pure mathematics. But if you want to say that I want to do research in applied maths or pure maths, I will tell research wherever you go, more or less it's always the same. One useful fact for applied maths is when you write papers, there are many journals where you have to pay lot of money. Amount of money is sometimes 80,000 per paper. Sometimes it is 5,000 per page. So if you write a paper for 20 pages, you have to write 1 lakh rupees. That is might not be possible. So what happens for applied mathematics? You might get many sponsors who are going to pay for your paper. But in pure mathematics, very difficult to get a sponsor. So monetary point of view, applied mathematics is much, so-called applied mathematics is much ahead of pure mathematics. But so for higher research, if you tell, I will say that it's equivalent. It's just matter of your interest. So, if anyone has any other questions, please ask. I mean, by unmuting yourself or by writing in the chat box. So can we say the angle is some inverse of some bijective function? So you say that what is Yes, angle? obviously, angle is the inverse of the sine function. You can also define it by cos function. They are equivalent definitions. In general, no such definition, right? Exactly. No. It's a definition is any one of the equivalent definitions. Any one of the, either it's the sine inverse or cos inverse. It can be tan inverse. Okay. Thank you. Any other questions from anyone? I'm seeing many are waiting, so maybe you have some questions. If you have, please feel free to ask. Sir has been so graciously answering every single question. So as of now, I cannot see any hands or any more questions in the chat box. So I think before ending the session, last one thing I want our host to share, just so you know, that sir is not just an exceptional mathematician, but he is an exceptional social worker as well, and has worked with us, our organization, in the upbringing and upliftment of the underprivileged for years now. So Gourab, if you can please share our host Gourab, I request him to please share the image of sir working in the field with us. So our attendees can get inspired to do some social work themselves also. Gaurav, please, after you. Yeah, so you can see that Sir is working, and there are many other pics. Like this pic you can see he was in charge of this blanket distribution program. So even he led, yes, this one picture you can see where our team, so Sonarpur Mondalpara Youth Organization, we were arranging a cloth distribution program during the pujas, Durga Pujas in West Bengal, which is the biggest holiday for the slum children. And sir, here you see the center one is I, of course, and sir is there. You have seen him speak, and the other person who is also a professor, who is Professor Anindo De. Sir also has a talk tomorrow only. So, yeah, I mean, that is basic odds faced by
novices to mathematics. So I ask and urge all of you to join so that we can be enlightened by his words also. So today I want to thank Dr. Gourab Tripathi for being such an enlightening and wisdom giving entity in the talk. I hope we all learned many attendees to do well in the future of their lives. So up to you, Gaurav, to do the conclusion. So I would like to thank everyone for their patience, and I would also like to thank Professor Gourab Tripathi for graciously accepting our invitation and sharing his precious knowledge with us in this session. With this, I would like to conclude today's session, and I would also invite you to join tomorrow's session on the odds faced by novice mathematics learners, which will be shared by our Professor Anindade from St. Xavier's College, Kolkata. Thank you. Sorry, Gaurav, you have missed one thing. There will be another talk tomorrow. That is how to deal with problems faced by students in analysis. Speaker will be Dr. Lakshmi Dev from NIT Durgapur. So, I hope you will also join tomorrow's session and enjoy. Thank you. So we will be again starting from the same time tomorrow. We urge you, today it was due to the inauguration program and other ceremonies, it took 10 minutes longer. From tomorrow onwards, it is a 3-day long seminar. So it will be today, tomorrow, and the day after tomorrow, I mean up to Sunday. Sunday will be in the morning from 11 a.m. And now, I mean, for tomorrow, I request all of you to join by 6:55. So our speaker will be there, and just after his introduction, we can start. So thank you everyone. It has been a pleasure from Sonarpur Mondolpara Youth Organization as well as Zetademy. I thank you all on behalf of both our organizations to be a part of this and make the seminar, the webinar so special for us. So now I'm signing off and thank you everyone. The day one of the session is over.